ایک طرف پاکستان تحریک انصاف ٹکٹوں کی تقسیم پہ ہی اختلاف کا شکار نظر آتی ہے، دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن مکمل طور پر تیار ہے ٹف ٹائم دینے کے لیے پی ٹی آئی کو۔ کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف مقابلہ کر پائے گی اور کس چیز کا اختلاف ہو رہا ہے پارٹی کے اندر؟ دیکھیں، اس وقت تحریک انصاف کے لیے ایک امتحان ضرور ہے۔ ویسے تو ان کے لیے ہر الیکشن جو ہے وہ امتحان اس لیے بن جاتا ہے کہ وہ پارٹی الیکشن ہو تب بھی امتحان بن جاتا ہے، سینٹ الیکشن ہو تب بھی امتحان ہو جاتا ہے ان کے لیے۔ 2021 میں جب پرائم منسٹر تھے عمران خان، اس وقت بھی ان کے لیے امتحان بن گیا تھا کہ پی کے سے 20 جو ایم پی ایس تھے وہ پیسے لے کے جو ہے وہ بک گئے تھے اور ان کی ویڈیوز بھی منظر عام پر آئی تھی۔ تو یہ ہمیشہ سے ہی تحریک انصاف کے لیے، ویسے تو باقی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بھی ایشوز ہے۔ اس وقت 2021 کا میں ریفرنس اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ عمران خان نے ایک بیانیہ بنایا تھا کہ ان کے لوگوں کو اربوں روپے کی آفرز ہو رہی ہے، اور ایک صاحب کا نام لیا تھا جن کا نام ہے عبد القادر۔ وہ ایک ارب پتی بزنس مین ہے اور بلوچستان سے پہلے ان کی مخالفت کی گئی، ان پہ الزام لگایا گیا اور بعد میں پھر انہی کو جو ہے وہ ٹکٹ جو ہے وہ دے دی گئی اور ان کو ہیلپ آؤٹ کیا گیا کہ وہ سینیٹر بننے میں کامیاب ہو جائیں۔ اب بھی اسی طرح کی صورتحال ہمیں کے پی کے اندر لگتی ہے۔ ایک تو کے پی کے اندر جو تحریک انصاف ہے، دو گروپس ہیں یقینی طور پر اس کے، پھر ٹکٹوں کے اوپر پسند ناپسند ہے۔ مثال یوسف زئی کے خلاف بہت سارا ایک گروپ ہے لیکن اس کے باوجود وہ فیورٹ ہو گئیں۔ ایک جو مرزا افریدی جن کے عشائیے میں جو ہے لاہور میں وزیر اعلیٰ خاص طور پر شریک ہوئے تھے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ایک عربتی بزنس مین ہے، ان کے حوالے سے بھی ایک مخالفت پائی جاتی ہے، لیکن چونکہ چیف منسٹر کا ہولڈ ہے، چیف منسٹر چاہتے ہیں کہ ان کو سینٹ کا ٹکٹ ملے۔ تو اس کے علاوہ جو باقی ایم پی ایز ہیں جو کہ ان کی آزاد حیثیت ہے، تو اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوتی ہے۔ اس دفعہ بولی جو ہے وہ کتنی لگتی ہے، اور جو ابھی تک کے اندازے ہیں اس میں تو اپوزیشن کو 5 اور حکومت کو 6 ملنی ہے، لیکن اگر جوڑ توڑ ہوا تو اس کے بعد تو پھر نمبر گیم بھی بدل سکتی ہے، اور جوڑ توڑ ہوتا ہوا بالکل واضح طور پہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ واقع صاحب، پارٹی کے جو درینہ وفادار کارکن ہیں، یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ ان کو نظر انداز کیا گیا ہے اور جو تگڑے لوگ ہیں، جو پیسے والے لوگ ہیں، ان کو نامینیٹ کیا گیا ہے۔ ٹکٹوں کی تقسیم میں ہی اختلاف نظر آ رہا ہے، تو آگے انہوں نے کس طرح سے لڑنا ہے اپوزیشن کے ساتھ؟ بس پی ٹی آئی میں یہی پرابلم جو ہے یہ عرصہ دراز سے سب لوگ دیکھ رہے ہیں اور ان کے ورکرز بھی اسی وجہ سے بد دل ہیں۔ دیکھیں، بات سینٹ کے الیکشن کی نہیں ہے، بات یہ ہے پارٹی کے اندر جو ڈسپلن ہے وہ بہت ہی مجھے وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہا۔ اب دیکھیں یہ کتنا اہم الیکشن ہے، ابھی تک نہ تو کوئی واضح اسٹریٹجی سامنے آ رہی ہے، کس کو ٹکٹ ملنا ہے، کس کو ٹکٹ نہیں ملنا، کس نے خرید و فروخت کرنی ہے، کس کے پاس پیسہ ہے، کس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اتنی قریب تاریخ آ گئی ہے اور ابھی تک پی ٹی آئی جو ہے وہ گوں مگوں کی صورتحال میں پھر رہی ہے۔ لیکن دوسری جانب دیکھیے جو وہاں پہ جو اپوزیشن ہے، میں بات کر رہا ہوں اس وقت مرکزی حکومت جو ہے اس نے جو کچھ کرنا ہے، یا دوسری جو وہاں پہ دوسری جماعتیں ہیں انہوں نے اپنی پوری اسٹریٹجی اور اپنی پوری تیاری مکمل کی ہوئی ہے۔ یہی پرابلم جو ہے یہ روز اول سے، میں آپ کو تو جب عمران خان جیل سے باہر بھی تھے تو اس وقت بھی پی ٹی آئی کے اندر ایسے بہت سارے معاملات سامنے آتے تھے کہ کئی چیزوں پر ان میں جو ہے وہ یکسوئی نہیں ہو پاتی تھی اور آپس میں اختلافات کا شکار رہتے تھے۔ یعنی کہ حکومت کے دوران بھی، جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس وقت بھی یہ فقدان تھا وہاں پہ۔ اب جو اس وقت صورتحال کے پی کے میں پیدا ہو گئی ہے، یہ کھیل تو چلتا رہے گا۔ دیکھیں الیکشن جو ہے یہ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، کبھی ایم پی اے کا الیکشن، کبھی مسلم لیگ نون کا ہے، کبھی جیم کا ہے، کبھی پیپلز پارٹی لڑ رہی ہے، کبھی پی ٹی آئی لڑ رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ جو اس وقت لوگ الیکٹڈ ہیں اور جن پارٹیوں سے ہیں، وہ جب ایک حلف کے تحت انہوں نے یہ ٹکٹیں حاصل کی اور انہوں نے پارٹی کے ساتھ کھڑے ہونے کا وعدہ کیا، حیران کن بات تو یہ ہے کہ جب وہ اپنے وعدے سے مکر جاتے ہیں اور اپنی پارٹی کو چھوڑ دیتے ہیں، وفاداریاں تبدیل کر لیتے ہیں، تو مجھے بتائیے کہ وہ کون سے پاکستان اور کون سے عوام کے لیڈر جو ہیں وہ بنتے ہیں؟ اچھا، اور یہ صرف ہم پاکستان تحریک انصاف کی بات نہیں کر رہے، کسی بھی جماعت، یہ ساری پارٹیوں میں یہ پرابلم ہے، ساری پارٹیوں میں یہ پرابلم ہے when it comes to Senate election۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں۔ نیازی صاحب، اسٹریٹجی کا فقدان نظر آ رہا ہے، سینٹ الیکشن سر پہ ہیں، لیکن واگا صاحب نے پوائنٹ
पॉइंट आउट किया, बिल्कुल दुरुस्त पॉइंट आउट किया, हमेशा की तरह यहाँ पे भी हमें कोई स्ट्रैटेजी नज़र नहीं आ रही। स्ट्रैटेजी का फुकदान क्या इस वजह से है कि बानी जेल में है, या ये पहले से एक रीत है जो दोहरा रही है अपने आप को? मेरा ख्याल है कि स्ट्रेटेजी का फुकदान तो छोटा सा लफ्ज है तहरीक इंसाफ के लिए, और बहरहाल फुकदान ही काफी वैसे होना चाहिए कि जिसमें बिल्कुल स्ट्रेटेजी नाम की चीज उनके करीब से नहीं गुजरी या उससे मुतारिफ ही नहीं हुए। लेकिन ये दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि जब से तहरीक इंसाफ आई है, मैं अक्सर टीवी पे, चूंकि मेरा एक किसी न किसी बाय डिफॉल्ट मैं इसके बहुत ही कुर्ब जवार में बल्कि अंदर उतरा हुआ हूँ एक जमाने में, और इमरान खान साहब की सारी खूबियों का जो है वो भी मुतरफ हूँ, और जो उनकी खामी है उससे भी कमा को वाकिफ हूँ। तो चुनाचे मैं ये बड़े दावे से इमरान खान साहब के सामने दूबे कहता रहता था। आज से 10-12 साल पहले जब मेरा उनसे जो मेल मिलाप था, और उसके बाद अब मुसलसल लिखता भी हूँ कि इमरान खान साहब 1996 से लेकर आज तक एक ऐसा पॉलिटिकल डिसीजन बता दें, एक फकत एक, और 29 साल हो गए सियासत करते हुए, 30वां साल शुरू है, कि एक ऐसा डिसीजन बना दे कि जिसके ऊपर वो इतराज सके हों, और जिसके ऊपर वो कह सके, इतराज तो छोड़े, जिसके ऊपर वो कह सके हों कि मैं जिसके बारे में उन्होंने तासुब का इजहार ना किया हो, या जिसके बारे में सोच ना किया हो कि हाँ ये डिसीजन मैंने गलत किया, हर फैसले के बारे में कहते हैं ये मुझे नहीं करना चाहिए था। बाकी अभी आदिल साहब ने बताया जी बलूचिस्तान का जिक्र किया, मैंने कराची का ये भूल का, वहां भी एक ठेकेदार था, सबुल्ला ठेकेदार, बंदी साहब को नाम था, और उसमें ऊपर पूरा सिंध की तहरीक इंसाफ कोलैप्स कर गई, लेकिन वो हर एक कहता था जी उसे 30 करोड़ रुपए दीजिए कैदत को। तो ऐसे इल्जाम लगे क्यों? और फिर इमरान खान साहब भी शख्सियत से जिनको पूरी उम्र अपने आप को चीजें बचा के रखा और कहा जी मैं तो करप्शन के खिलाफ जिहाद कर रहा हूँ, उनके तो करीब से इस तरह के इल्जाम नहीं गुजरने चाहिए थे, लेकिन बारह लगे। तो एक सैड स्टोरी है जी। अब ये जरूर हुआ है केपी में कि उन्होंने, मैं जहां तक मेरी इत्तलात है कि तकरीबन गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट अपोजिशन का आपस में तय हो गया है कि 6 सीट तरीके की 7 बनती थी, एक उन्होंने कुर्बान कर दिया है ताकि अपनी 6 जो है सिक्योर कर ले, और बाकी 4 जो हैं वो उन्होंने अपोजिशन को दे दिए 10 में से। लेकिन इसके अलावा एक और बात जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि ये जो सीट्स दी जिनको दी हैं, अभी मिर्जा अफरीदी का जिक्र हुआ या मिशाइल का हुआ, इसके अंदर पार्टी के अंदर आपने देखा कितनी एक रिजेंटमेंट थी खासकर मिर्जा अफरीदी के ऊपर। तो बिल्कुल ऐसे ही है। पार्टी की आदत के आगे जो बाहर लोग थे वो कह चुके थे कि खान साहब ने जी कैटेगोरिकली कहा, फैसल जावेद ने कहा कि मिर्जा अफरीदी को नहीं देना। इसका मतलब कोई तो गिदड़ सिंगी है ऐसे लोगों के पास, पैसे वालों के पास, कोई तो मंत्रा है कि वो टिकट लेके उड़ जाते हैं। और आखिरी बात सिर्फ ये है कि आखिरी बात ये है कि जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है वो ये तहरीक इंसाफ के अंदर हमेशा था, अब वो इतना कैंसरस हो गया है कि वो पूरी तहरीक इंसाफ को। अच्छा, इंटरेस्ट डेफिसिट की आप बात कर रहे हैं आदिल साहब, किस चीज का इंटरेस्ट? बानी पीटीआई को रिहा करवाने का इंटरेस्ट, या पार्टी को मुनज़्ज़म करने के हवाले से इंटरेस्ट? किसका डेफिसिट है इनमें? ना पार्टी को मुनज़्ज़म करने का, ना इमरान खान खुद ने कभी इस तरह का कोई इकदाम उठाया है कि जिससे लगे कि पार्टी जो है वो मुनज़्ज़म। वो वन मैन पार्टी है, ऐसे इमरान खान से शुरू होती है, इमरान खान पे ख़त्म हो जाती है। इसीलिए किसी लीडरशिप को जो है वो ग्रोथ करने का मौका ही नहीं मिला। हालांकि इमरान खान का बयानिया बाकी जो जमातों के हवाले से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो कहते थे कि वो वहाँ पर जो है फैमिली पॉलिटिक्स है, एक लीडरशिप, एक शख्स है जो सारी पार्टी के ऊपर जो है वो डिक्टेटरशिप बन के वो करता है। लेकिन आप इमरान खान की पार्टी को देख लेना, सेम सूरत हाल है। वहाँ पर इमरान खान के अलावा ना किसी की सुनी जाती है, ना इस पे जो है वो अमल होता है। अच्छा आदिल साहब, जिस तरह न्याज़ी साहब ने कहा, हो सकता है कि आने वाले वक्तों में फ्यूचर में जाके वो इस अपनी बात पे भी रिग्रेट करें और कहें कि मैं गलत सोचा था। अच्छा, एक और चीज़ जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहूँगी वो ये है कि जुलाई और आगे अगस्त का जो मंथ है पीटीआई के लिए इस तरह से भी इंपॉर्टेंट है कि जुलाई में सेनेट इलेक्शन होने वाले हैं, और अगस्त में बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 अगस्त इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट डे जो है वो करार दिया है। फिर इनकी एक तहरीक जो है वो भी चलनी है। तो क्या ये कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि किस चीज़ को पहले लेके चलें, और ये तहरीक की तरफ इनका इंटरेस्ट ज़्यादा है सेनेट इलेक्शन से भी?
तहरीक की तरफ से भी कोई एक्टिविटी तो नजर नहीं आती। अभी तो सेनेट इलेक्शन है, जाहिर सी बात है 21 की डेट सर पे खड़ी है और जैसे न्याजी साहब ने कहा वो बिल्कुल 5 और 6 की एडजस्टमेंट है, क्योंकि 11 सीटें हैं केपीके से, तो 5 और 6 अच्छी बात है कि अगर हुकूमत और अपोजिशन बैठ के जो है वो सीट एडजस्टमेंट कर लें तो उससे जो हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता है, जो अरबपति हैं जो हमेशा से जो है वो सेनेट इलेक्शन को ही जवाज बना के तो है वो पैसा लेके तो आते थे। इससे पहले एक टाइम था कि सेनेट में पढ़े लिखे लोग जो हैं वो मौजूद होते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त ने ऐसी तब्दीली की कि हमने देखा कि बलूचिस्तान में भी पैसा चलने लगा, केपी में भी पैसा चलने लगा और उसके बाद जो है वो सूरत हाल बदल गई। जैसे मैंने अभी 20 MPs का जिक्र किया, सेनेट का जो इलेक्शन जो 2021 का था, जो मरकज का इलेक्शन था जिसमें हफीजुल्लाह शेख जो है वो तहरीक इंसाफ हुकूमत के कैंडिडेट थे, वो यूसुफ रजा गिलानी से हार गए थे, जबकि चौधरी गुलाम सरवर जो PTI के कैंडिडेट थे, जहां पर पंजाब में नून लीग की हुकूमत थी, वो वहां से जीत गए थे। तो ये रुपए पैसे की गेम तो हमेशा से जो है वो सेनेट के अंदर चलती रहती है। तो ये आगे भी गंदा खेल इसी तरह चलेगा, लेकिन इसके लिए बेहतर हिकमत अमली भी यही है, तहरीक इंसाफ को वक्त की नज़ाकत को समझते हुए अपोजिशन के साथ सीट एडजस्टमेंट कर लेनी चाहिए ताकि कोई ऐसी मिसहैप ना हो, हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, उनके MPs की बोली ना लगे, या खुद अब आप ऐसा लगता है सम टाइम कि तहरीक इंसाफ के लोग खुद इस इंतजार में बैठे हों कि कहाँ से उनको ऑफर आए और वो ऑफर बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वो कहते हैं ना जिसका पलड़ा भारी होता है हर कोई उसी जानिब झुकाव रखता है। वागा साहब, अच्छा जबरिया, सॉरी जी आप इसे मेरे से पहले आप न्याजी साहब से बात करें। मेरे वो बहुत सीनियर हैं और बड़ी कदर शख्सियत हैं। अच्छा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि वो मुझसे बाद में बात करें। प्लीज़ आप पहले उनको बात करने का मौका दें। चलें ठीक है। न्याजी साहब, वागा साहब की बात आपने सुन ली होगी। आपसे मैं सवाल ये करना चाहूँगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर हम बात करें तो 2 धड़े इसमें नज़र आते हैं। एक वो जो सोशली बड़े एक्टिव हमें नज़र आते हैं, सोशल एक्टिविस्ट आप उन्हें कह लें। दूसरे वो धड़ा है जो बड़े आला ओहदों पर फाइज हैं, उन्हें कोई फिक्र नहीं है और वो बड़े मज़े से बैठे हुए हैं, बानी PTI की रिहाई के लिए भी कोई इतने मुतहरिक नहीं नज़र आ रहे, बस जो हो रहा है चलता जा रहा है। किस तरह से आप देखते हैं कि बानी PTI की जो रिहाई है, कौन है जो उसमें इंटरेस्टेड है? ये जो तहरीक की बात कर रहे हैं, 5 अगस्त की बात कर रहे हैं, इंटरेस्टेड ये नज़र आ रहे हैं, सीरियस नज़र आ रहे हैं? पहले तो जवेरिया और बागा साहब को बहुत बहुत शुक्रिया इज्जत अफजाई का। अल्लाह ताला उनको इसी तरह फलता फूलता अच्छा शाद आबाद रखे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखें जी, आप ये जो इनका PTI का मसला क्या है? PTI का मसला ये है कि वहाँ पे वो कहते हैं ना कि बड़ा खूबसूरत शेर में याद आता है कि जमाने में नवाबजादा नसरुल्लाह साहब बहुत पढ़ते थे। अब उनकी मेरा ख्याल में जो है इतबा में मुजीबर शामी साहब बहुत पढ़ते हैं। मतलब मुजीबर शामी साहब तो अक्सर ये कहते हैं कि गुबार कैस खुद उठता है खुद बर्बाद, यानी कोई महमल नसी क्यों शाद या नाशाद रहता है, गुबार कैस खुद उठता है खुद बर्बाद होता है। ये गुबार कैस में ना हुआ है जी। ये जितना इनका मसला ये है कि जिस तरीके से टफ डेफिसिट है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ की सफों में कलबली बची हुई है। हर बंदा दूसरे बंदे के ऊपर एक शक की निगाह से देख रहा है, एक उसको एक उसके ऊपर बदतमादी है, हर बंदा दूसरे का सॉल्यूशन का आदमी समझता है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात है कि इमरान खान साहब जो है उनका एक बुरहान किधर है सियासी, उनका सियासी बुरहान ये है कि वो किसी एक चीज पे यकसू नहीं है। वो ना तो जिसको कहना चाहिए कि अल्लाह आपका भला करे, उनको इस बात पे अपने आप को जो यकसू कर सकते हैं कि उनको मुफाहमत करनी है, ना इस बात पे कर सकते हैं कि उनको मुखासमत करनी है। अब ये कैसी चीज है कि जब आप में यकसुई नहीं है और आपका कहेगा आप ये सोचें कि दौड़ लग गया तो मैं एक बहुत बड़ा जो है टकराव लेके और सेशन को पिछाड़ दूंगा, अगर पिछड़ती नहीं आई तो मैं मुफाहमत वाले बंदे विड्रॉ कर लूंगा। अब दूसरी तरफ मुफाहमत के बंदे जो है ना, वो जितने बंदे हैं उनको पूरे बड़े बड़े होते हैं, वो जाते हैं बड़े बड़े दफ्तरों में बैठ के कॉफी पीते हैं, टांग पर टांग चढ़ा के गुफ्तगू करते हैं। और जो मुफाहमत वाले बंदे उनके बड़े जो
इंतहाई मुखलिस लोग हैं, वो इमरान खान साहब को दौ लगाने वाले नहीं है, वो अच्छा। कॉम्प्रोमाइज है, वो कंप्लायंट नहीं है। अब जब आप ये क्राइटेरिया रखें कि अपने जो आपके बड़े मुखलिस लोग हैं उनको तो आपने तवे पे बिठाया हुआ है, जैसे मेरा अपना बेटा है 10 साल के लिए अंदर है, तो ये लोग जो है ना वो एक अजीब दूसरी मिल से गुजर रहे हैं। और जो मुफाहमत की पॉलिसी जिनको इमरान खान ने खुद बनफ्स नफीस वजीर आला बनाया है, लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाया है, पार्टी होते दिए हैं, जितने दिए हैं सारे के सारे जो है किसको नहीं पता कि ये कंप्लायंट है। ये भी एक छोटी सी बात करके मैं वाइंड अप करता हूँ जी, जी। कि अभी जो आपने देखा है कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहे अली मीन गंडेपुर का, ये आपका क्या ख्याल है उसको हटाने के लिए? नहीं, उसकी हिफाजत के लिए आ रहा है कि इमरान खान साहब ने अच्छा। मेरी इत्तला के मुताबिक 2 दफा जेल में से उनको पैगाम भिजवाया है, 2 दफा उनको मुंह पे कहा है और 2 दफा जेल से पैगाम भिजवाया है कि आप रिजाइन कर दें। अच्छा। अब उन्होंने ये बताया हुआ है कि अगर आप लेके जो फैसल करीम कुंडी साहब या बाकी कि अगर इन्होंने रिजाइन किया तो हम अपना बंदा ले आएंगे। इस बात से अली मीन करना पर सर्वाइवर है, और इसका मतलब कौन बता रहा है? सलशन बता रही है। ठीक है, ठीक है, किनके लिए बता रही ठीक है सर, जो आपने बड़े बड़े 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किए हैं, यही मैं वागे साहब आपकी तरफ लेके आना चाहूँगी। पहली बात तो ये कि न्याज़ी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। हम हमेशा ये बात करते हैं कि यकसुई या कंसिस्टेंसी की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इसकी बहुत ज़्यादा कमी है या फुकदान नज़र आता है। एक तो इसकी क्या वजह है, और दूसरा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, क्योंकि ये भी र्यूमर्स हैं कि उनकी जो वजारत है वो ख़तरे में है KP में, अली अमीन गंडापुर साहब की, तो वो भी वजाहत कर दी न्याज़ी साहब ने कि ये भी प्री प्लान चीज़ें हो रही हैं। असल में बिल्कुल न्याज़ी साहब ने ये सही बात की और इशारा उनका जो भी है वो बिल्कुल सही तरफ है कि चूंकि ये वन मैन पार्टी है तो इसमें कोई यकसुई नज़र नहीं आ रही। असल मसला ये है कि जब भी ये लोग बैठते हैं आपस में कोई बात करने के लिए PTI के, तो इनको हर बात के लिए जो है वो फैसला, हतमी फैसला जो है वो जेल से लेना पड़ता है। एक तो इसमें ताख़ीर बहुत हो जाती है और बहुत सारी जो चीज़ें हैं उतनी देर में वो गुजर चुकी होती हैं, एक बात। दूसरी बात यह है, अगर हम फैक्ट्स की तरफ आए ना, असल मसला ये हुआ है कि ये जो अभी हाल ही में अदालत के हुक्म पर जो मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को मिली हैं ना, इन्होंने इस सेनेट के इलेक्शन को ना जंग आलूद कर दिया है। यानी वो जो एक क्लैरिटी आ रही थी सिस्टम में, और डे 1 से जो PTI का एक अपना बयानिया था फॉर्म 47 वाला, एक तो उसकी वजह से बड़े मसाइल आ रहे थे और पूरी दुनिया में मौजूदा हुकूमत और इंतखाबात के बारे में तरह तरह की बातें हो रही थी, और उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये हुआ कि ये मखसूस नशिस्तें जो है वो PTI के हाथ से चली गई, जिसके बाद जो पावर का बैलेंस है वो मुकम्मल तौर पर इम्बैलेंस हो गया, वो किसी भी तरह से मतवाजी ना रहा। इस सूरत हाल के बाद अब जो सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं, अब सारे लोग खुद ये समझ रहे हैं कि जब मखसूस नशिस्तें ही उनको मिल गई हैं तो सारे का सारा जो नक्शा है वही बदल गया है। अच्छा, तो अब KP में कोई बंदा सोच सकता था 1 नशिस्त या 5 नशिस्त, और जो अब इस वक्त तनासब बातें हो रही हैं, अभी तक कोई पता नहीं किसने कहाँ जाना है, कैसे जमहूरियत है, कैसा निज़ाम है, कैसे लोग हैं, कैसी पार्टियां हैं हमारी। मैं सारी पार्टियों को बात कर रहा हूँ कि पार्टी के सरबराह को खुद नहीं पता कि मेरे मेंबर ने वोट किधर देना है, जिसको मैंने सीट दी, जिसको मैंने टिकट दी, जिसको मैंने इलेक्शन लड़ाया, जिसने मेरे नाम पे आपके ख्याल में जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला आया है उसने इफेक्ट किया है सेनेट इलेक्शन को जो KP में